فیئرز ایجوکیشن ہوں. آج کا ویبینار کنسٹرکشن سیکٹر سے متعلق ہے اور یہ ایف بی آر کے فیسیلیٹیشن اینڈ ٹیکس پیئر ایجوکیشن اینڈ ان لینڈ ریونیو پالیسی ونگ کی جانب سے آرگنائز کیا گیا ہے. اس ویبینار کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹیکس کنسیشن ٹو دا کنسٹرکشن سیکٹر. ہمارے آنریبل پینلسٹ میں شامل ہیں مسٹر عبد القادر میمن, فارمر پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن, ڈاکٹر نجیب اللہ صاحب, چیف ان لینڈ ریونیو پالیسی ایف بی آر, مسٹر عثمان احمد صاحب, سیکنڈ سیکرٹری آئی آر پالیسی ایف بی آر. ویلکم ٹو آل دا ریسپیکٹڈ پینلسٹ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے فروغ کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے جس کو 17 اپریل 2020 ٹیکس لا امینڈمنٹ آرڈیننس کے ذریعے سے لاگو کیا گیا ہے. کنسٹرکشن پیکج کے بارے میں مزید جاننے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا مسٹر عبد القادر میمن صاحب سے. عبد القادر میمن صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ عبد القادر میمن صاحب ریناؤنڈ لائر ہیں اور ٹیکس کی پریکٹس کرتے ہیں اور کراچی بیسڈ ہیں. ریسنٹلی یہ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن کوآپریشن جو سارک ہے, سارک کے سلسلے میں بھی جو ٹیکس ٹیکس کلچر بہتر کرنے کے لیے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ان کی بڑی خدمات ہیں اور ان کو یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ویلکم قادر میمن صاحب. میمن صاحب یہ بتائیے گا کہ کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے ہی سیکٹر کو گورنمنٹ کی جانب سے کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے, کوئی اکانومی بیس کا امپیکٹ ہے, کیا ریزنز ہیں سر اس کی؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا یہ موقع فراہم کرنے کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے, آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کہ یہ آخر یہ گورنمنٹ کا فوکس صرف کنسٹرکشن کی طرف کیوں گیا. اس لیے کہ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد سیکٹر ایسا ہے کہ جہاں اگر ایک کنسٹرکشن سیکٹر چلتا ہے تو وہاں پر تقریباً کوئی ایک اندازے کے مطابق اباؤٹ 40+ انڈسٹریز جو ہیں وہ اس میں گرو کرتی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ وہ سیکٹر ہے جو امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرتا ہے. تو یہ فوکس جو ہے, اور یہ ایک ایسا بزنس ہے جو کہ نیشن وائڈ جس کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے. جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ گول ہے کہ وہ ہر غریب آدمی کو اس کو رہنے کی سہولت پیدا کر سکے اور ہر غریب آدمی جو ہے اس کے پاس ایک مناسب رہنے کی جگہ ہو. یہ 4 فیکٹر ایسے ہیں جس کے لیے پی ٹی آئی کی کرنٹ گورنمنٹ نے اس سیکٹر کو چنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کی سکسیس ہونے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ سیمنٹ سیکٹر ہے, اسٹیل سیکٹر ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سیکٹرز ہیں کنسٹرکشن سے سیکٹرز, ان سب کی گروتھ ہوئی ہے. اور الحمدللہ جو ہے پاکستان کے اندر ایک اکنامی کا پہیہ اس کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے ساتھ چلا ہے. زبردست. میمن صاحب یہ بتائیے گا کہ بلڈر اور ڈیولپر دو جو ٹرمز ہیں وہ نارملی اس پیکج کے حوالے سے بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں, ان میں کیا تکنیکی فرق ہے اس میں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ قانون میں ان کو کیا مراعات دی گئی ہیں؟ دیکھیں, بلڈر اور ڈیولپر کے جو پہلا سوال ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص, چاہے وہ انڈیویجول ہو, چاہے وہ پارٹنرشپ فرم ہو, چاہے وہ لمیٹڈ کمپنی ہو, اگر وہ کسی ایک پرٹیکولر پلاٹ پہ ایک عمارت کھڑا کرنا چاہتی ہے تو اس کو بلڈر کہا جاتا ہے, چاہے وہ 5 منزلہ ہو, 4 منزلہ ہو, 20 منزلہ ہو, 30 منزلہ ہو. ڈیولپر اس کو کہتے ہیں جو ایک پیس آف لینڈ ہوتا ہے جس کو وہ ڈیولپ کرتا ہے اور اس کو وہ پلاٹ کی شکل میں کٹ کرنے کے بعد, پلاٹ کی شکل میں اس کو نکالنے کے بعد وہ اینڈ کنزیومر کو بیچتا ہے, اور پھر اینڈ کنزیومر جو ہے ان پلاٹ پہ اپنے آپ سے خود کنسٹرکشن کرتے ہیں. تو یہ اس کو ہم کہیں گے کہ ڈیولپر کا رول, اور جو ایک پلاٹ پہ جو کنسٹرکشن ہائی رائز کنسٹرکشن کریں گے یا چھوٹی کنسٹرکشن کریں گے اس کو ہم کہیں گے جو ہے وہ بلڈر ہے. آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ اس کی خاص پہلو کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وقت 42 ایئرز ہو گئے ٹیکس کے پریکٹس میں,
اور میں نے بہت طرح کی ایمنسٹی اسکیم یا بہت طرح کی سہولت کی اسکیم دیکھی ہے. یہ واحد اسکیم ہے جس کو اتنا ویل ڈرافٹڈ کیا گیا تھا اور اس کو اتنا ویل ریپرزینٹیڈ تھا کہ میں سمجھتا ہوں جس دن سے یہ اسکیم آئی ہے اس اسکیم میں سوائے ڈیٹ کی انہانسمنٹ کے اس کے کسی بھی زیر و زبر کو چینج نہیں کیا گیا. I think that is a very commendable job which was done by the legislature and of course the team which has helped in the FBR. اچھا اب اس کے خصوصی پہلو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی واحد اسکیم ہے جو اپنی تمام پچھلی جو اسکیمز ہیں ان سے بہت منفرد ہے. منفرد اس لیے ہے کہ دیکھیں پہلے اسکیم یہ آتی تھی کہ اچھا جی آپ ایک پیسے ڈکلیئر کر دیں, آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. وہ بھی اس کے اندر ان بلڈ ہے, یعنی اگر آپ کے پاس آپ ایک انڈیویجول ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک ایسا پلاٹ پڑا ہوا ہے جو آج تک ڈکلیئر نہیں ہوا تو آپ آئیے اس کو ڈکلیئر کیجئے, اس پہ کنسٹرکشن کیجئے. سو آپ سے اس پلاٹ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا اور آپ اس پہ کنسٹرکشن پہ بھی جو کاسٹ لگائیں گے تو اس کا بھی نہیں پوچھا جائے گا. پھر ایک سوال یہ آتا تھا کہ جی یہ بلڈرز ہوں یا چاہے ڈیولپرز ہوں, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس تو خیر اتنے پیسوں کی نہیں ہوتی, لیکن جو جنرلی اس وقت جو ان آفیشیل اکانومی ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے جو ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں, ان کے پاس بھی ایک کوانٹم ہوتا ہے. تو گورنمنٹ نے پھر ایک اور مراد دے دی کہ اچھا جی کوئی بھی شخص پہلا پرچیزر ہوگا, کسی جگہ بکنگ کروائے گا, کسی بھی ایسے پروجیکٹ میں بکنگ کروائے گا جس نے اپنے آپ کو FBR میں اس پروجیکٹ کو رجسٹر کیا ہوگا, تو اس کو بھی پیسوں کا نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے. پھر کسی نے کہا کہ اچھا جی یہ تو کمرشل لیول پہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے پلاٹس ہونے چاہیے, وہ تو بہت بڑا انویسٹمنٹ ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو بھی رعایت دیں گے, اور اگر آپ کسی ایک نیت سے اس نیت سے آپ یہ پلاٹ خریدیں کہ آپ اس پہ کنسٹرکشن کریں گے اور پھر اس کو آپ بیچ دیں گے. یعنی گورنمنٹ کا فوکس یہ تھا کہ اکنومی چلے اور جاب کی کریشن ہو. تو چاہے آپ ایک پلاٹ کی شکل میں چھوٹے کی کریں, چاہے آپ ایک انویسٹمنٹ کر کے آپ اپارٹمنٹ لینا چاہیں, چاہے آپ جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کرنا چاہیں. اچھا جو دوسری چیز یہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ کو اس کمپنی کے اندر اگر آپ کوئی نفع کمائیں گے تو جو فکس ٹیکس آپ دے دیں گے تو آپ کا ڈیویڈنڈ ایگزمپٹ ہوگا. دس از دی اونلی یونیک اسکیم جس کے اندر آپ جو بھی ڈیویڈنڈ آپ کو دینا ہوگا تو اب آپ کو ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کمپنی کے نفع پہ ایک ہی دفعہ ٹیکس دے دیں تو آپ کے شیئر ہولڈرز کو بھی کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اچھا پھر اس میں کباد اس انڈسٹری کے اندر سب سے بڑی یہ تھی کہ لوگوں کا یہ تھا کہ جناب ہم یہ ریتی بجری خریدتے ہیں, ہم پلمبر سے چھوٹے کام کرواتے ہیں, تو ہم ان سے جب 4.5-5% ٹیکس کاٹنے جاتے ہیں تو ایک تو وہ فائلر نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں 4.5 کی بجائے ان سے 9% کاٹنا پڑتا ہے, کہیں کہیں ہمیں 20% کاٹنا پڑتا ہے. تو گورنمنٹ نے کہا کوئی بات نہیں, آپ صرف اسٹیل اور سیمنٹ اس پہ آپ ٹیکس آپ کو کاٹنا ہوگا. اور اسٹیل اور سیمنٹ ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیل اور سیمنٹ میں موسٹلی اسٹیل اور سیمنٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ بڑی کمپنیز ہیں, ان کے پاس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس کے علاوہ جتنے بھی آپ اخراجات کریں گے سوائے لمیٹڈ کمپنی کے آپ کو کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس کرنے کی ضرورت نہیں. اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کی آلموسٹ 10 سے 15% جو ہے آپ کی کاسٹ آف کنسٹرکشن کم ہو گئی, اور اس سے یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایک کنسٹرکشن جو ہے وہ اویلیبل سستی ہو گئی. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور ان سے کہا گیا کہ جناب والا آپ فکس ٹیکس دے دیں گے, آپ سے کوئی ٹیکس آفیسر نہیں پوچھے گا, اور آپ پھر اس کا 10 گنا اس ٹیکس کا 10 گنا اپنی کتابوں میں اس کے مطابق آپ پروفٹ دے سکیں گے. although اس سے اوور اینڈ ابو ہوگا اس کا کہیں پر ذکر نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے جو فریکوینٹلی آسکڈ کوشچنز ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ اس سے اوور اینڈ ابو جو ہوگا وہ نارمل پہ ٹیکس ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی مکمل اسکیم ہے کہ جس کے تحت اگر کنسٹرکشن میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو کنسٹرکشن کا کام نہیں کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا جی اس پیکیج کی وجہ سے ہم کنسٹرکشن کا کام بھی شروع کر دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پورا بینیفٹ اٹھانا چاہیے. اس بینیفٹ میں اب ڈیٹ تو صرف 15 مئی تک کی رہ گئی ہے کیونکہ آپ کو 45 ڈیز پہلے جو ہے وہ نقشے جمع کروانے قانونی طور پہ ضروری ہیں. تو آئی ایم شیور گورنمنٹ اس پہ کنسیڈر کر رہی ہوگی کہ اس کی ڈیٹ بڑھانی چاہیے یا نہیں بڑھانی چاہیے. بٹ آئی تھنک دس از دا موسٹ ونڈرفل اسکیم which is covered in all respect. جی میمر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے
پیکج کے سیلنٹ فیچرز کے بارے میں بتایا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو بندہ نہیں بھی کنسٹرکشن کا کام کر رہا تھا اس نے بھی اس کو شروع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ جو الائڈ انڈسٹریز ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس اسکیم کا جو بیرون ملک پاکستانی ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے، وہ بھی اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر اٹھا سکتے ہیں تو کیا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بیرونی ملک میں اول تو جو وہاں سے فنڈز بھیجے گا اور وہ نان ریزیڈنٹ ہوگا تو اس کو یہاں پہ ان کے تو وہ ایکسپلینیبل فنڈز ہوں گے، تو وہ چاہے کسی شکل میں بھی انویسٹمنٹ کریں، میرا نہیں خیال ذاتی طور پہ کہ ان سے پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے ان فرنٹ ایکسپلینڈ فنڈز ہیں تو وہ جو فرسٹ پرچیزر کی کنڈیشن ہے اس کے اندر وہ اس کو ضرور اس کا ایڈوانٹیج اٹھا سکتا ہے، اور اس میں وہ اگر اس کو بک کروائے اور پیمنٹ جو ہے وہ کراس چیک سے اگر اس کی ہوتی ہے تو فورن میں جو رہنے والے لوگ بھی ہیں وہ بھی اس کا بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ کاسٹ آف کنسٹرکشن کمپیریٹیولی 15 سے 20% کم ہو گئی ہے، تو بیرونی ملک جو انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں ان کو کمپیریٹیولی اس اسکیم کے تحت ایک ایڈوانٹیج ہوگا 15-20% کا، بنسبت اس کے کہ جو اس اسکیم کے تحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی میں ڈاکٹر نجیب اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کائنڈلی بتائیں کہ جو قانون سازی اس پیکج کے بارے میں کی گئی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کا کیا لیگل فریم ورک ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ آسان فہم زبان میں اس کو بتائیے تاکہ ٹیکس پیئرز اور پبلک کو اس کے بارے میں سمجھ آئے۔ جی سر۔ وزیر اعظم صاحب نے جب کنسٹرکشن پیکج کا اعلان کیا تو یہ ایک آرڈیننس کی شکل میں، جس کو ٹیکس لاز امینڈمنٹ آرڈیننس کہا گیا، یہ اپریل 2020 میں یہ نافذ العمل کیا گیا، اور بعد میں اس کو انکم ٹیکس کے اندر فائنانس ایکٹ کی شکل میں ایک پرماننٹ شکل کی لیجسلیشن کی شکل میں شامل کر لیا گیا۔ اور جیسا کہ ابھی قادر میمن صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ہم نے کچھ ڈیٹس ایکسٹینڈ کی ہیں، جو ڈیڈ لائنز تھی۔ اس کی بہت ساری ڈیڈ لائن جو پروجیکٹ شروع کرنے کی تھی وہ 31 دسمبر 2020 کی تھی، جن کو بڑھا دیا گیا۔ اس بڑھانے کے لیے ایک دوبارہ قانون سازی کی گئی جو جنوری میں عمل میں لائی گئی۔ تو اس تمام قانون سازی کے اندر ہمارے انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر سیکشن 100D متعارف کرایا گیا ہے، جو کہ ایک کمپریہنسو پیکج ہے، اور اس کے ریٹس اور کچھ شرائط جو ہیں وہ 11th شیڈیول میں جو ٹیکس آرڈیننس کا ہے اس میں دی گئی ہے۔ جی سر۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ ایمنسٹی کا کیا مطلب ہے اس پیکج کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ کس طرح کی ایمنسٹی ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اور یہ کن کن لوگوں کو حاصل؟ میں یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو کنسٹرکشن پیکج وزیر اعظم صاحب کا کنسٹرکشن پیکج تھا، اس کے دو پہلو ہیں۔ اس کو براڈر کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے ایک فکسڈ ٹیکس رجیم، جو کہ فائنل ٹیکسیشن ہے، اس کو متعارف کرواتا ہے۔ دوسرا اس کا وہ رجیم ہے جہاں پہ آپ ایمنیسٹی بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ سے انویسٹمنٹ کے ذائقہ نہ پوچھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فکس ٹیکس رجیم میں بھی رہیں گے۔ جن لوگوں نے صرف فکس ٹیکس رجیم اپلائی کرنا ہے، ان میں تمام تر وہ ایسے پروجیکٹس جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں اور نئے پروجیکٹس بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے ایمنیسٹی کلیم کرنی ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نئے پروجیکٹس شروع کریں، اور نئے پروجیکٹس کی جو کچھ شرائط ہیں جو بڑی کہ معمولی آسان فہم اور ان پہ عمل درآمد کرنا بہت آسان ہے، اس کے مطابق اس پر عمل کریں۔ میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے جیسے قادر میمن صاحب نے بڑے واضح طریقے سے بتایا کہ یہ دو ٹیکسیشن کے طریقے کار ہیں۔ فکس ٹیکس کا طریقہ ہے، اس کے اندر ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم کو آلموسٹ کمپنیز کے علاوہ اور سیمنٹ اور اسٹیل کے علاوہ باقی تمام چیزوں پہ اس کو وائپ آف کر دیا گیا ہے۔ اس میں ایمنیسٹی دے دی گئی ہے، اور اسی ایمنیسٹی کے اندر ایک
हमारे टैक्स लॉ की स्कीम है कि जहाँ पे इनकम एग्जेम्प्ट होती है या उसको कहीं भी टैक्स होती है तो उसका कंपैरिजन उसके साथ एक टर्नओवर टैक्स के जरिए किया जाता है। तो हमने टर्नओवर टैक्स से भी इसको एग्जम्पशन दे दी है। आपने जहां तक एमनेस्टी का जिक्र किया तो एमनेस्टी के भी आगे दो तरीकेकार हैं। एक वो लोग जिनके पास पैसा है वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो उसका तरीकेकार बताया गया है कि किस तरीके से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो पर्सन्स करेंगे इन्वेस्ट वो लॉ उनको 3 कैटेगरीज में रिकॉग्नाइज करता है। एक तो इंडिविजुअल्स हैं, दूसरे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, तीसरे कंपनीज हैं। इंडिविजुअल्स ने जब सरमाया करना होगा तो वो एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नया अकाउंट खोलेंगे, उसमें वो यकमुश्त पैसे भी डाल सकते हैं और इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स करके भी अपनी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे उनके अपने होने चाहिए, बोरोड फंड्स नहीं होने चाहिए। और कंपनीज के लिए जरूरी है कि वो भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंपनी हो और वो सिंगल ऑब्जेक्ट एओपी और कंपनीज बनाई जाए जो 1 अप्रैल 2020 के बाद रजिस्टर हो और फिर वो अपने प्रोजेक्ट्स हो। इन तमाम एमनेस्टीज को अवेल करने के लिए ये जरूरी है कि वो अपने प्रोजेक्ट को एफबीआर की वेबसाइट पे रजिस्टर कराएं। इस एमनेस्टी का एक पहलू तो इन्वेस्टर्स की तरफ आ गया, जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाई, बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं। इसका दूसरा पहलू जो है वो बायर्स भी है। ऐसे बायर्स जो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर से पूरा प्रोजेक्ट या उसका कोई यूनिट खरीदेंगे तो उनको फर्स्ट परचेज पे एमनेस्टी है। एमनेस्टी का मतलब ये कि उन पे नेचर एंड सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी किस्म का सवाल नहीं किया जाएगा। जी सर। अब मैं गुजारिश करूंगा उस्मान साहब से, सेकंड सेक्रेटरी आईआर हैं, कि वो तफसील से आगाह करें कि इस पैकेज के तहत कितने किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं और इनका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। जी उस्मान साहब। जी थैंक यू वेरी मच। इस लॉ के तहत जो है 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एमनेस्टी स्कीम को अवेल कर सकते हैं। एक को हमने डिफाइन किया हुआ है एज अ न्यू प्रोजेक्ट और दूसरे को हमने डिफाइन किया हुआ है एज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको हमने सेक्शन 100D ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर डिफाइन किया हुआ है। न्यू प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, जब ये कानून हम लाए हैं अप्रैल 2020, एग्जैक्टली 17 अप्रैल 2020, और उसके बाद से लेके और 31 दिसंबर 2021 इस पीरियड के दरमियान में उसको शुरू होना चाहिए और बाय 30 सितंबर 2023 उसको फिनिश हो जाना चाहिए। ये हमारे जो है ये न्यू प्रोजेक्ट है। और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 17 अप्रैल 2020 यानी कि ये कानून आने से पहले के वो शुरू हुए हैं और अप्रैल 2020 में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन उनकी हो चुकी हुई है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स जो आगे अप्रैल 2020 के बाद उनकी जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन रहती है वो हम उनको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में हम उनको कंसिडर करते हैं और उनको भी बाय 30 सितंबर 2023 फिनिश हो जाना चाहिए। और कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं उस डेट से जब आपकी जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो आपके डेवलपमेंट प्लान को या लेआउट प्लान को जिस दिन वो अप्रूव करेगी वहां से हम कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है या कमेंस हो चुका हुआ है। और दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर आपने उनके ऊपर एमनेस्टी अवेल करनी है तो एमनेस्टी अवेल करने के लिए उसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है वो 30 जून 2021 हमने दी हुई है। और अगर आप सिर्फ फिक्स टैक्स रिजीम को अवेल करना चाहते हैं तो वो बाय 31 दिसंबर 2021 आप उनको रजिस्टर करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए जो तरीका है वो बहुत आसान है। जो आयरस पोर्टल है हमारा एफबीआर का, जिसके ऊपर आप लॉगिन होकर अपना रिटर्न फाइल करते हैं, वहीं आपने लॉगिन होना है। उसमें जो रजिस्ट्रेशन का टैब बना हुआ है उसके अंदर 2 तरह के हमने फॉर्म इंट्रोड्यूस करवा दिए हुए हैं। एक फॉर्म है रजिस्ट्रेशन एज बिल्डर डेवलपर और वो उन लोगों के लिए है जो अपने न्यू प्रोजेक्ट्स को या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर कराना चाहते हैं। और दूसरा फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन एज अ परचेजर है, जो अपनी प्लॉट्स को या बिल्डिंग यूनिट्स वगैरह को परचेज करके उसके ऊपर एमनेस्टी हासिल करना चाहते हैं तो वो हमने उनके लिए भी फॉर्म हमने दिया हुआ है। सो ये आयरस लॉ पोर्टल के ऊपर दोनों फॉर्म्स जो हैं
ये अवेलेबल हैं और उनको फिल करना जो है वो बहुत आसान है, कोई उसमें कोई इतनी मुश्किल उसके नहीं है। उसके लिए हमने FPR की वेबसाइट के ऊपर एक जो है उसका एक थोड़ा सा मैनुअल जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, वो भी FPR की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। वीडियो ट्यूटोरियल भी मौजूद है? जी, वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो उसके ऊपर मौजूद है, उसको आप देख के तो फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अच्छा उस्मान साहब, आपने टर्म यूज की अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर द प्रोजेक्ट, ये काइंडली थोड़ा सा तफसील से बताइएगा। अप्रूविंग अथॉरिटी से क्या मुराद है? अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी है जहां आप अपने मैप को लेके जाएंगे और वो आपके मैप के जितने पर्टिकुलर्स हैं कि आपका एरिया कितना है, उसके ऊपर कितने पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और इस तरह की जो सारी डिटेल्स हैं उनको वो एक तरह से सर्टिफाई करेंगी। और मैप अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो इट कुड बी जैसे CDA भी हो सकती है, अगर आप DHA में कोई प्रोजेक्ट करें तो DHA की अपनी एक अप्रूविंग अथॉरिटी है, वो भी हो सकती है। बाकी भी जो तमाम शहरों में जहां आप अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वहां अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो हैं, वो इसको प्रोजेक्ट को आपके सर्टिफाई कर सकती हैं। और उसके अलावा नेस्पाक जो है, जो हमारा इदारा है, वो भी एज एन अप्रूविंग अथॉरिटी इसको प्रोजेक्ट को सर्टिफाई कर सकता है। वेल उस्मान साहब, ये बिल्डर और डेवलपर के लिए रिटर्न जमा करवाने का कोई तरीक़ेकार है या कोई डिफरेंट तरीक़ेकार है? वो कैसे अपना टैक्स जमा करवाएंगे? जी, ये सवाल काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि इसका रिटर्न फाइल करना लाजमी है या नहीं। तो इसका रिटर्न फाइल करना जो है वो बिल्कुल लाजमी है और इसकी जो रिटर्न है वो वही सेम रिटर्न है जो आपके IRS पोर्टल में आप ईयरली अपना फाइल करते हैं, हर साल का टैक्स ईयर का ये वही रिटर्न आपने फाइल करना है। उसके अंदर हमने नेसेसरी जो अमेंडमेंट्स हैं अपने प्रोजेक्ट्स की जो टैक्स से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो हमने उसमें डाली हुई हैं, जो आप फिल करेंगे वहाँ पे जाके। और दूसरा जो है इसकी जो एडवांस टैक्स की पेमेंट है उसके लिए हमने क्योंकि इसकी जो टैक्स की पेमेंट है वो आपने एडवांस तरीके से करनी है, जैसे आप सेक्शन 147 में 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में इसकी पेमेंट करते हैं, तो वो उसके लिए भी हमने जो हमारा FPR का पेमेंट सिस्टम है उसके अंदर हमने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है 14700D के नाम से। उसको यूज करके आप इस क्वार्टरली पेमेंट जो है टैक्स की वो कर सकते हैं और वो जब आप पेमेंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न में भी वो रिफ्लेक्ट वहाँ हो जाएगी। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि जो बायर डेवलपर है वो इस एमनेस्टी के जरिए से अपना डिक्लेरेशन कैसे फाइल करेगा? जो बायर है, परचेजर है या बायर है, उसके ऊपर भी ये एमनेस्टी स्कीम जो है ये लागू होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो IRS पोर्टल है उसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन एज अ परचेजर। वो बायर उसमें लॉग इन होकर अपने IRS में उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उसके अंदर सारी डिटेल्स अपने प्रोजेक्ट की कि वो प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या उसकी सेल की जो भी वैल्यू है वो कितनी है और उन्होंने पेमेंट थ्रू क्रॉस बैंकिंग चैनल की है, कितनी अमाउंट है, वो सारी डिटेल वो वहाँ पे अपनी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बाकी जो रजिस्ट्रेशन एज अ बायर है उसके ऊपर ऐसा कोई टैक्स नहीं है, सो इसलिए उनको कोई इसके अंदर टैक्स नहीं देना, वो अपना नॉर्मल जो रिटर्न है उसको वो शो करेंगे और जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें इसको जैसे जो ईयरली जो भी इसकी वो है परसेंटेज जो है वो वहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। थैंक यू। वेल कमिंग अगेन टुवर्ड्स अब्दुल कादिर मेमन साहब, सर ये बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो हैं इन पे सेल्स टैक्स लागू होता है या नहीं, इस पे क्या आप करेंगे? देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स पे सारे प्रोविंसेस पे सेल टैक्स है और उन पे सेल टैक्स का बिल्कुल लागू होता है, लेकिन सेल टैक्स आपको पता है ये एक ऐसी लेवी है जो कि अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर को उसको बेयर करना होता है। तो इस पे अल्टीमेटली जो बिजनेस करने वाला है उसको सिर्फ अपने वैल्यू एडिशन पे टैक्स देना होता है, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट जो है वो टैक्स उसके बिजनेस में नहीं आता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर किसी शख्स ने आपने पहले भी बताया, थोड़ा तफसील से काइंडली बताइएगा, अगर किसी शख्स ने पहले कभी अपने ज़राए आमदन जाहिर नहीं किए और वो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या वो किसी किस्म की कानूनी गिरफ्त में तो नहीं आएगा? उसके लिए कोई पकड़ेगा तो नहीं, उसको कोई पूछेगा तो नहीं? नहीं, मेरा ख्याल देख, मैंने पहले भी तो आपको बताया था कि अगर कोई इंडिविजुअल शख्स उसके पास ऐसी आमदनी है जिसको अभी तक उसने जाहिर नहीं किया था और वो इस स्कीम के तहत अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता है, तो अगर इंडिविजुअल है तो उस पे ये लाजिम है कि वो एक बैंक अकाउंट खोले, जैसे नजीब साहब ने भी कहा
उस बैंक अकाउंट में वो पैसे डाले, और जितने पैसे उस बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे एक डेट तक, उस डेट के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या उस दरमियान जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका उनसे नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स, उसके पास एक अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और वो उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो वो बेशक इस प्रोजेक्ट को एफबीआर में रजिस्टर, उस प्लॉट को करवाए और उस पर कंस्ट्रक्शन करना शुरू करे, तो उस प्लॉट का भी नहीं पूछा जाएगा, और उस पर जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आएगी वो जो बैंकिंग चैनल के थ्रू करेगा उस पर भी नहीं पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अगर कॉन्स्टिट्यूट करता है और उसमें अगर कोई एक से ज्यादा लोग जो हैं वो पार्टनरशिप में अपने कैश पैसे लगाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो बैंक अकाउंट में पैसे डालें, अपने पर्सनल अकाउंट का खोल के, और उस अकाउंट से उस पार्टनरशिप में पैसे डालेंगे, तो जितने पैसे उस रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए लगेंगे उसके मुतालिक नहीं पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो कि अपनी लैंड लाना चाहता है बजाय पैसों के, तो वो लैंड उस एओपी के नाम पे अगर ट्रांसफर कर देगा, तो अगर वो लैंड ट्रांसफर हो जाएगी तो उस लैंड में वो अगर अनडिस्क्लोज लैंड भी होगी तो वो उसके मुतालिक जितना भी उसको उसकी वैल्यू होगी, वैल्यू का एक मेथड बताया गया है कि 130% एफबीआर की होगी, या वो जो है जो दो वैल्यूएटर से करवाएगा, विच एवर विल बी द लोअर, उसको लिया जाएगा। तो इंडिविजुअल से नहीं पूछा जाएगा, एओपी से नहीं पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर कोई कंपनी बनाते हैं और उसमें कोई शेयर होल्डर्स पैसे लगाना चाहते हैं, वो भी अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालें और उस कंपनी के अंदर शेयर्स खरीद लें, तो उस शेयर्स जो खरीदेंगे, उस शेयर्स के जो इन्वेस्टमेंट उनका हुआ है, तो उसके मुतालिक भी उनसे नहीं पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर किसी के पास लैंड है और वो उस लैंड को उस कंपनी में लाना चाहता है और उसके अगेंस्ट में जो उसको शेयर्स इश्यू होंगे, उस शेयर्स का भी नहीं पूछा जाएगा, प्रोवाइडेड वो लैंड पे जो प्रोजेक्ट बनेगा वो एफबीआर के में सेक्शन 100D के तहत रजिस्टर्ड होगा। तो इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, चाहे उनके पास कैश पैसे हो, चाहे उनके पास अनडिक्लेयर्ड लैंड हो, उनसे कोई नहीं पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कीम के अंदर कि सिवाय एक क्राइम मनी के आपको किसी और कानून में के तहत भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि जी आपके पास ये पैसे कहां से आए। मेमन साहब ये बताइएगा कि एज ए टैक्स एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, ये जो कंस्ट्रक्शन ओवरऑल इस पे? मैंने शुरू में आपको बताया कि मैंने शायद अपनी प्रैक्टिस की लाइफ में कोई ऐसा मुकम्मल कानून होते हुए नहीं देखा, क्योंकि इंसान के बनाए हुए कानून होते हैं, उसमें हर वक्त कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं। बट आई थिंक दिस इज द ओनली लॉ जिसमें कोई भी उसकी अलिफ बे जबर को चेंज नहीं किया गया और उसके अंदर एक इतना कॉम्प्रिहेंसिवली सोच के इस पैकेज को बनाया गया था, सिवाय इसके कि उसके अंदर जो डेट्स थी, उन डेट्स में चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश है और तमाम जो करंट रिजीम है उसकी ये ख्वाहिश है कि इसके तहत जो इकोनॉमी का एक पहिया चला है और इकोनॉमी ने जो एक बूम लिया है वो मेरे ख्याल में चलना चाहिए, तो इसलिए उसमें डेट एक्सटेंड की गई है। और आई थिंक जो भी हमारी डोनर एजेंसी है उनका भी कंसर्न इसमें आई एम श्योर होगा इसकी एक्सटेंशन ऑफ डेट में। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर नजीब साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बीइंग चीफ पॉलिसी आप काइंडली बताइएगा कि एफबीआर ने इस ज़मन में अब तक क्या इक़दाम उठाए हैं जिससे लोगों को फायदा हो। देखिए राशिद, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो इसके अंदर ये स्कीम अप्रैल 2020 में नाफिजुल अमल हुई, तो पहला टास्क जो एफबीआर के पास था वो इसको ऑपरेशनलाइज करना था। तो इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी वेब पोर्टल पे इसके डिफरेंट फॉर्म्स थे जो रजिस्टर्ड जो हमने मुहैया करने थे। वो फॉर्म्स एफबीआर के पॉलिसी विंग इन कंसल्टेशन विद आईटी विंग फौरी तौर पे मुहैया कर दिए। उसके बाद हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके उनके साथ बैठ के हमने वेबिनार्स मुनक्कद कराए। जो डिफरेंट किस्म के वेबिनार्स आए उस पे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अंदर टैक्स बार्स, उसके अंदर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स देमसेल्व्स, उसके अंदर इंटरेस्टेड सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। तो उस पे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। उन तमाम क्वेश्चंस को एफबीआर एक ऑन गोइंग प्रैक्टिस के तौर पे
रजिस्टर करता जा रहा है और FBR की वेब पोर्टल पे उनको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के नाम से हम अपडेट करते रहते हैं ताकि तमाम तर लोग उनसे इस्तेफादा कर सकें। सो फार मोर देन 80 क्वेश्चन जो हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं उनके रिप्लाई समेत, जो FBR का मौक़िफ़ है। और जैसे कि कादर मेमन साहब ने बताया कि ये आसान फहम और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसमें झगड़े कम से कम होने की तवक्को है। इसके बावजूद कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको लॉ और हमेशा एनविसेज नहीं कर सकता। उन तमाम सिचुएशंस के जवाब जो हैं वो हम दे रहे हैं। उसके बाद हमने रीजनल सेमिनार जो हमारी फील्ड फॉर्मेशंस हैं डिफरेंट RTOs, LTOs, MTOs ने मुनक्कद करवाए हैं डिफरेंट शहरों के अंदर, जहाँ पे हमारे तमाम फोकल पर्सन्स मुकर्रर हैं जिनको हमारे IT सिस्टम से या किसी भी क्वेरी के बारे में कोई चीज़ चाहिए तो वो लोकली भी उनसे रब्ता कर सकते। फिर इसके बाद जो FBR ने सबसे अहम इक़दाम किया वो रिटर्न की सिंप्लीफिकेशन का। इनका जो फॉर्म था वो बहुत सिंप्लीफाइड था। फिर रिटर्न के अंदर इनका जो डिक्लेरेशन दिया गया वो सिर्फ इन्होंने नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, टोटल एरिया और उस पे जो टैक्स कैलकुलेशन है वो खुद से डाल देनी है और टैक्स का प्रूफ दे देना है कि ये टैक्स हैज बीन पेड। इसके बाद कोई क्वेश्चन उनसे नहीं किया जाएगा। जैसे कि कादर मेमन साहब ने बताया, और ये कादर मेमन साहब की भी एक क्वेरी थी कि ये जो बायर्स हैं उनके लिए हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया है, हालांकि लॉ में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी तमाम स्टेक होल्डर के मशवरे से दिया गया था कि उन लोगों को भी, ताकि FBR का कोई फील्ड में बैठा हुआ ऑफिसर उनकी रिटर्न देख के ये सवाल ना करे, वो सिर्फ अपने सिस्टम से चेक करे क्या ये रजिस्टर्ड था। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है बायर, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं भी है, तो आज के इस फोरम से हम ये क्लियर करते हैं कि अगर वो नहीं भी रजिस्टर्ड होगा तब भी उसको ये इम्यूनिटी, क्योंकि लॉ दे रहा है, उसको अवेलेबल होगी। लेकिन उसको क्वेश्चन किया जा सकता है कि वो उसके कागजात साबित करे कि उसने उसी प्रोजेक्ट से खरीदा है। अगर उसने उसी प्रोजेक्ट से खरीद के रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को, तो ये क्वेश्चन भी उसका किसी भी 17 अप्रैल 2020 से पहले से शुरू हुए हैं और 17 अप्रैल 2020 के बाद भी उनके ऊपर काम चल रहा है और वो भी 30 सितंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ये सटल सा डिफरेंस है। उस्मान साहब, अगर कोई बंदा अपनी जाती प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है या अपनी दुकान शुरू करना चाहता है जाती हैसियत, तो क्या वो इस पैकेज से फायदा उठा सकता है? अगर उठा सकता है तो कैसे? जी, ये सवाल बहुत दफ़ा हमसे पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो यस है कि जो हमारा सेक्शन 100D है उसके सब सेक्शन 4 में हमने ये प्रोविजन दी हुई है कि जो प्लॉट के ऊपर अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो वो बिल्कुल इसको कर सकता है, रजिस्ट्रेशन वो इसकी करवा सकता है और वो इसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में भी ला सकता है। लेकिन उसमें सिर्फ शर्त ये है कि जो इम्यूनिटी है वो उसको अवेलेबल होगी, वैल्यू ऑफ प्लॉट या जो प्राइस ऑफ प्लॉट उसके पास है उस वहां तक उसको अवेलेबल होगी। जो उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करेगा घर बनाने के लिए, जो भी उसके ऊपर उसका खर्चा आएगा वो इसके अंदर जो है वो कवर्ड नहीं है और उसके लिए उसके पास जो है वो नोन या अवेलेबल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। और साहब, FBR पे जो रजिस्ट्रेशन करवाना है या ये लाजमी है, मतलब इस पैकेज का फायदा उठाने के लिए? अगर मैं कहता हूं कि मैं बगैर रजिस्ट्रेशन करवाए इससे कोई बेनिफिट लूं, तो क्या ये पॉसिबल है? जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं उनके लिए भी ये लाजमी है कि वो भी इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। FBR की पोर्टल पे जाके अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आप एमनेस्टी के लिए या फिक्स टैक्स रिजीम को अवेल करने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। और जो परचेजर हैं या बायर्स हैं उनके लिए भी हमने रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल रखा हुआ है। उनमें जो प्लॉट के परचेजर हैं उनके लिए तो हमने कानून में डाला हुआ है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करानी है, लेकिन जैसे डॉक्टर नजीब ने पहले भी बताया कि जो लोग बिल्डिंग या यूनिट के अंदर परचेज कर रहे हैं, हमने उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए उनको भी रजिस्ट्रेशन के उसमें हमने कवर किया हुआ है कि वो भी रजिस्ट्रेशन में अपना डाटा जो है वो डाल के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि बाद में टैक्स अथॉरिटी की तरफ से उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा उस्मान साहब, आपने ये हमें बताया कि 1070 के करीब प्रोजेक्ट रजिस्टर हो चुके हैं। जी सर। कोई जो इन्वेस्टमेंट का क्वांटम है कोई वो आप हमारे रजिस्ट्रेशन में आ रहा है? जी सर, तकरीबन 383 बिलियन रुपीस की जो है वो क्वांटम है कंस्ट्रक्शन का, बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोजेक्ट्स का जो हमारे पास
इस वक्त आ रहा है, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास रजिस्टर हुए हैं न्यू भी और एग्जिस्टिंग, वो तकरीबन 383 बिलियन रुपीस की उसमें क्वांटम है। तो ये काफी बड़ा क्वांटम है, 383 बिलियन रुपीस। जी उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और इसके बारे में बताया। कीपिंग इन व्यू टाइम कंस्ट्रेंट्स, एक आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर नजीब साहब से करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, क्या कोई कंपनी या एओपी कोई इनफरादी हैसियत में इंडिविजुअल अगर कोई प्रोजेक्ट, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा है तो वो कर सकता है? देखिए बिल्कुल, इसके अंदर जब लॉ के अंदर भी प्रोवाइडेड फॉर है कि एक शख्स एओपी या कंपनी एक से ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन का जो अमल होगा वो हमें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस इनको करना पड़ेगा और इनको टैक्स कैलकुलेशन भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे करनी होगी। वो प्रोजेक्ट के लिए अगर एक कंपनी और एओपी को कहा गया है कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी है, तो इट डज नॉट मीन कि वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए एक कंपनी वजूद में आए। अगर वो कंस्ट्रक्शन के लिए आती है प्राइम मिनिस्टर पैकेज के इस दौरान में, तो वो कंस्ट्रक्शन के 2-3 प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, जितने भी कर ले, लेकिन उनको हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स जो है डिफरेंट होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन और टैक्स कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। सिर्फ यही शराइत है। जी अब्दुल कादर मेमन साहब, वन लास्ट क्वेश्चन सर, काइंडली बताइएगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या स्कोप है? आप क्या समझते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है इस पैकेज को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, दुनिया में अगर आप देखें तो दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उन सब में, उन इकोनॉमीज में कंस्ट्रक्शन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं अमेरिका की मिसाल लूं तो अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा अगर कोई रोल इकोनॉमी में प्ले करता है तो वो कंस्ट्रक्शन या रीड की जो स्कीम्स हैं वो करती है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन एक वाहिद ऐसी चीज है जिसके साथ एक तो एलाइड इंडस्ट्रीज बहुत सारी होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए, और दूसरा ये कि अगर कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ अगर होता है तो उससे, और ये एक ऐसी चीज है जो कि आपकी कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट होती है आबादी के साथ। ये जरूर है कि कराची में फर्ज कर लें, हम कहें कि भाई कराची में उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी बनिस्बत नवाबशाह में, क्योंकि नवाबशाह की आबादी में बाहर से लोग नहीं आते हैं, यहाँ से ज्यादा आते हैं, बट कंपैरेटिवली उसका स्कोप जो है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं इस स्टेज पे, चूंकि मुझे अंदाजा है कि इस स्टेज पे मैं एक रिकग्निशन भी करना चाह रहा हूँ कि एफबीआर की टीम ने तो जो किया, आई थिंक आबाद की टीम ने जो है वो इस कानून की जब वो बन रहा था तो उस वक्त उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा विजन था कि वो, जिसे नजीब साहब ने कहा कि उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लिया, तो इसलिए इस पैकेज को बनने में बहुत ही ज्यादा और बहुत ही जो है वो आसान और सहल है। इसी की वजह से उसके अंदर जितने भी तमाम स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है इसमें। अच्छा, एक चीज में अगर आपकी वसातत से अगर एक और क्लेरिफिकेशन यहाँ कर दूं तो अगर आप इजाजत दें, अगर फर्ज करें कि कोई ऐसा बिल्डर या ऐसा डेवलपर जिसके पास एक बहुत बड़ा लैंड ऑफ पीस, एक बहुत बड़ा एक कंपनी के अंदर है, और वो ये चाहता है कि मैं इतना बड़ा जो है वो तो नहीं कंस्ट्रक्शन कर सकता इस लिमिटेड पीरियड में, तो उसको ये भी इख्तियार दिया गया है कि आप एक टुकड़ा मुंतखब कर लें, उस टुकड़े के अंदर जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे उस प्रोजेक्ट को आप एफबीआर में रजिस्टर कर लें, तो आपको उस पूरे प्लॉट पे भी नहीं करने की जरूरत। तो आई थिंक इससे ज्यादा सहूलत आपको नहीं हो सकती कि जनाब आपके पास अगर 50,000 गज जगह है और आप एक 12,500 गज को आपने आइडेंटिफाई कर दिया और आपने कहा कि जी मैं इस पे प्रोजेक्ट ए बनाऊंगा, और आपने उसको एफबीआर के साथ रजिस्टर कर लिया, तो आई थिंक आप जो है इस लॉ के तहत ये भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके तमाम खुदो खाल को बहुत अच्छी तरह से इस पैकेज में रखा गया है। जी थैंक यू कादर मेमन साहब। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को भी इसमें रजिस्टर किया जा सकता है। जी इसके साथ ही हम आज का वेबिनार का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है इस प्रोग्राम से टैक्स पेयर्स को काफ़ी इश्यूज जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड थे क्लैरिटी आई होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है www.fbr.gov.pk।
اس پہ ویڈیو ٹیوٹوریلز بھی کنسٹرکشن سیکٹر سے ریلیٹڈ موجود ہیں اور FAQs بھی کافی تفصیل سے وہاں پہ فراہم کیے گئے ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عبدالقادر میمن صاحب کا, ڈاکٹر نجیب اللہ صاحب کا, عثمان احمد صاحب کا کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہمیں مفید باتوں سے آگاہ کیا. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.